سب کو بہت بہت مبارک ہو. جواب تو دیں. یہ یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے. اور جب ہم سوچتے تھے پاکستان میں بہت سارے چینلز ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ چینلز کی وجہ سے ہماری جو تعلیمات ہیں، خاص طور پر کیتھولک تعلیمات، ان سے وہ محروم تھے. چرچز میں تو آتے تھے لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے سوالات تھے، بہت ساری ایسی باتیں تھیں جن کو کلیئر کرنا ہمارے لیے بڑا اہم تھا. تو ابھی جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے مذہبی یا کوئی ہمیں کویشچنز ہوتے ہیں تو ہم فوراً آوے ماریا چینل کو ریفر کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو ٹیلی فون پر یا آ کر تو نہیں بتا سکتے، آپ برائے مہربانی اس چینل کو دیکھ لیں، وہاں پر آپ کے تمام سوالات کے جوابات موجود ہوں گے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. وہ کہ یہ یوٹیوب چینل ہے اور آج سوشل میڈیا کے بغیر ہم بے بس سے نظر آتے ہیں. کرونا وائرس میں بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز تھی جن سے لوگوں نے بہت پازیٹیو رسپانس دیا کہ آوے ماریا کیتھولک چینل نے ہماری روحانی بیداری میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو اس لیے مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہے اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کو کہ ان کی ذاتی کاوش اور کوشش سے اس ساری چیزیں کو ایک کوالٹی پروگرام کے ذریعے پیش کیا گیا. میں نے کہا کہ چیلنج تو بہت زیادہ ہے، یوٹیوب کھولیں تو آپ کو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بہت سارے ایسے مواد ملیں گے، لیکن یہ ایک ایسا چینل ہوگا جس پر اتھینٹک اور پرووڈ، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی شک کی بات نہیں. آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سوال یا کسی بھی کویشچن یا کنفیوژن کو، تو یہ واحد چینل ہوگا جو آپ کے تمام سوالات کے جوابات اتھینٹک ثبوت کے ساتھ دے گا. اور آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھنی ہے تو وہاں پر اس بات کا بیان ہوگا. تو اس لیے میں بہت خوشی کے ساتھ آج آپ سب کو بھی اور خصوصاً پوری ڈائسیس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خداوند ہماری ڈائسیس کو اسی طرح ترقی اور کامیابی کی سرزمین میں لے جائے. بہت شکریہ. آج بلکہ اس سے پیشتر بھی سماجی ابلاغ یعنی میڈیا ایک مضبوط نعرہ رہا ہے، جس سے نہ صرف ابلاغ کی شہرت میں اضافہ ہوا بلکہ یہ ثقافت اور تہذیب کے پھیلاؤ میں اشد ضرورت رہا ہے. آج علم اور معلومات اور تجربات کو بانٹنے کے لیے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے میڈیا نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. لہذا سماجی ابلاغ کو کوئی نئی بات نہیں بلکہ زمانہ قدیم ہی سے انسان کے مقاصد کو عام کرنے کا ذریعہ ٹھہرا ہے. فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے میڈیا کے ذریعے اپنی کلیسیا کو روحانی طور پر، ایمانی طور پر اور سماجی طور پر بیدار کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. یہ وہ عظیم قائد ہیں جو اپنی قوم کے مستقبل کے بارے میں نہایت سنجیدگی سے سوچتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جو ہماری قوم کا سرمایہ اور ستون ہیں، اور مومنین کی روحانی بیداری کے لیے اقدام اٹھا رہے ہیں. ویسے تو جب سے ہی انہوں نے اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کی ذمہ داریوں کو سنبھالا ہے، ہم ان کی گاہے بگاہے مختلف کاوشیں اور کوششیں دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ آوے ماریا کیتھولک ٹی وی یوٹیوب چینل کا آغاز بھی ایک ان کی بہت بڑی کاوش ہے، جس کا مقصد ہے امن اور امید کا سفر. اس کے ذریعے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اور بہت سے والنٹیئرز اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور اسے پروموٹ کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جب سے کرونا وائرس کی وبا دنیا میں شروع ہوئی تب ہی سے اس کے دوران بھی بہت سے ایسے پروگرامز ہوئے ہیں
जो काबिल तहसीन हैं और इनसे नौजवान और कलीसिया ईमानी तौर पर मजबूत हुई हैं। फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का ख्वाब था कि मीडिया के ज़रिए पैगाम रसानी का काम किया जाए। आवे मारिया कैथलिक टीवी यूट्यूब चैनल उनकी काविशों और मेहनतों का मुंह बोलता सबूत है। मैं अपनी तरफ से और हमारे पैरिश सेंट माइकल्स कैथलिक चर्च शावरकंड के तमाम मोमिन की तरफ से आवे मारिया यूट्यूब चैनल की इफ्तिताई तकरीब के मौका पर फजीलत माब आर्च बिशप जोसेफ अरशद आवे मारिया यूट्यूब चैनल के तमाम अरकान और इंतज़ामिया को उनकी इस अजीम काविश पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। पुण्य स्मरण मौका पर मैं अपने बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद और उनकी टीम को मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने ये सोचकर इस चैनल का आगाज़ किया है। इस चैनल पर बलाहट और खिदमत, हमारा फ़ख्र और ईमान की गूंज जैसे प्रोग्राम जो है दिए जाएंगे। अजीज़ मोमिनीन, हम सब के लिए बड़ी खुशी और शादमानी की बात है। जो ख्वाब हम इतने सालों से देख रहे थे वो आवे मारिया कैथलिक टीवी की सूरत में पूरा होता नज़र आ रहा है। इस टीवी चैनल के ज़रिए हम सब अपने घर बैठे अपनी डायसिस की तमाम सरगर्मियों को बआसानी देख सकते हैं। नीज़ तमाम इबादती प्रोग्रामों से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस बहुत बड़े काम का सेहरा हमारे नहायत ही मोहतरम फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद को जाता है, जिनकी अनथक मेहनतों की बदौलत आज हम अपने घर बैठे अपनी पूरी डायसिस का जायज़ा ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आवे मारिया कैथलिक टीवी हम सब के लिए बाइस बरकत होगा। इस मौका पर मैं फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद को उनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ बिशप साहब का, जिनकी वजह से जिन्होंने आवे मारिया कैथलिक टीवी यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया ताकि खुदा का कलाम घर घर पहुँचे। माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद को आवे मारिया चैनल के इख्तिताम के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इनका बहुत बड़ा इक़दाम है जिसके ज़रिए से हम रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस की तमाम सरगर्मियाँ देख सकते हैं। मैं आवे मारिया कैथलिक टीवी के इफ्तिताह के मौका पर अपने फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुसूसी उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने बिशप साहब के इस विजन को, इस ख्वाब को पूरा किया। और ये कहते फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद को उनके इस गरां कदर खिदमत पर और उनके इस तारीखी फैसले पर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि खुदावंद के वसीले से हमारे डायसिस को तरक्की की राहों पर गामज़न किए हुए हैं। दुआ है खुदा से कि जिस तरह माँ मुकद्दसम मरियम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने का वसीला बनी, इसी तरह ये चैनल भी बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए वसीला ईमान बने और जिस अमन और उम्मीद के सफ़र का आज हम लोग आगाज़ कर चुके हैं, खुदा करे ये सफ़र हमारी डायसिस के लिए और पूरी कैथोलिक कलीसिया के लिए मुबारक ठहरे। थैंक यू। याद है, अगर अब तारीख में देखें 12 रसूल कैसे निकले, उनके पास क्या वसाइल थे? कुछ नहीं। रूह कुद्दस ने वाकई उनके ज़रिए काम किया। पौलुस जब गए ग्रीस को क्या कहते हैं, यूनान में, और यूनान तो मशहूर था पुरानी दुनिया में, बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े मैथमेटिशियन, अफलातून, सुकरात, अरस्तु वगैरह, लेकिन वो बुत परस्त थे। और जब पौलुस उनके दरमियान जाता है तो बाजार में जाकर जहाँ सारे लोग जमा होते हैं, दैट वाज द वे ऑफ गेटिंग मीडिया अक्रॉस, ना रेडियो भी था। तो उसने देखा कि बहुत सारे बुत, जुपिटर और दीगर और उनके जो देवता थे बड़े बड़े और बहुत खूबसूरत, दे वर वेरी गुड आर्टिस्ट, ब्यूटीफुल स्टैचूज बनाना। तो पौलुस यही सोचा, मुकद्दस पौलुस को, अब मैं ऐसे लोगों के दरमियान क्या पैगाम कैसे दूँ मसीह का। फिर उसने देखा एक स्टैंड बना हुआ है जिसके ऊपर कोई स्टैचू नहीं था,
बल्कि नीचे लिखा था टू द अननोन गॉड, नामालूम देवता के नाम से। मुकद्दस पौलुस ने उस पॉइंट को पकड़ा और कहा मैं उसके बारे में बोलने के लिए आया हूँ जिसके बारे में तुम अब तक नहीं जानते। तो ये बड़े फिलोसोफर और मैथमेटिशियन और साइंस कहेगा ये क्या हमें बताने आया, और फिर उन्हें खुदा यीशु मसीह का पैगाम दिया। तो हमें भी खुदा यीशु मसीह के इस पैगाम को फैलाने के लिए आगे रहना चाहिए, सोचना चाहिए। तो बिशप साहब, आर्च बिशप साहब एंड योर फुल टीम और आने वाले जो आएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने सबको दावत दी कि वो भी आए, क्योंकि ऐसा काम अकेला नहीं होता है और ये डायसिस का काम है। तो जो फादर सिस्टर मोमनीन में से सामने आकर म्यूजिशियंस, दीगर आर्टिस्ट जैसे आपने कहा, इज़ वेरी नेसेसरी। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा इस डाइस। जब हम आवे मारिया कैथलिक टीवी का बाकायदा आगाज़ करने को है तो आप सब के लिए हमने एक खूबसूरत रिपोर्ट तरतीब दी है, तैयार की है। तो आएँ हम इस रिपोर्ट के ज़रिए से आवे मारिया कैथलिक टीवी चैनल की एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो आएँ, लेट्स एंजॉय द आवे मारिया कैथलिक टीवी। सलाम है मरियम जन्नत, सलाम है साया रहमत, सलाम है मरियम जन्नत, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। सलाम है साया रहमत, सलाम है मरियम जन्नत, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। ये कलियां फूल महपारे, तेरे नक्शे कदम सारे। ये कलियां फूल महपारे, तेरे नक्शे कदम सारे, तेरे पाँवों पड़े सारे, सलाम है नूर के धारे। लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। सलाम है साया रहमत, सलाम है मरियम जन्नत, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। तेरी आगोश में तारे, तेरे कदमों में सैयारे। तेरी आगोश में तारे, तेरे कदमों में सैयारे, निछावर तुझ पे हैं सारे, सलाम है नूर के धारे। तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम। सलाम है साया रहमत, सलाम है मरियम जन्नत, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम, तुझे लाखों सलाम।
फजीलत मुआब कार्डिनल जोसेफ कोट्स, रेवरेंड फादर्स, सिस्टर्स और मेरी डायसिस के नौजवान और मोमिनीन, हमारे लिए ये बहुत ही खुशी और मसरत का बाइस है कि हम आज तमाम मुक़द्दसीन की ईद के बाबरकत मौका पर अपनी डायसिस में आवे मरिया कैथलिक यूट्यूब चैनल का हमने आगाज किया है। मीडिया के इस दौर में हम मुनादी करने और खुदा के कलाम का प्रचार करने में पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि मीडिया दौरे हाजरा में वक्त की अहम जरूरत है। खास तौर पर कोरोना वायरस के इन दिनों में और ख़ास तौर पर इसके इब्तदाई अयाम में, जब हमारे मोमिनीन पाक मास की नेमत से भी मरहूम रहे, तो हम सब के लिए ये एक लम्हा फिक्र था। लोग पाक मास की इबादत के लिए, पाक शराकत के लिए तरस रहे थे और पाक मास में शरीक होने के लिए तड़प रहे थे, और उनका दर्द बतौर पासबा हम बाखूबी महसूस कर सकते थे। और ऐसे हालात में जब बिशप हाउस के अंदर हम अक्सर अपने आप को भी बेबस पाते थे कि कैसे मोमिनीन तक इन हालात में पहुंचा जाए, तो फिर ऐसे ख्याल ने जन्म लिया कि हम ऑनलाइन इबादत के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल का आगाज करें और इसके जरिए वक्त गुजरने के साथ साथ एक को साथ मिलाया, दो को साथ मिलाया, तीन को साथ मिलाया और एक टोला बना। कहने का मतलब है कि इसके लिए आपको आर्टिस्टों की जरूरत होती है, इसके लिए आपको टेक्निकल लोगों की जरूरत होती है, और हमें इस नेक फरीजे को सारे अंजाम देने के लिए जो है वो वॉलंटियर्स की जरूरत थी। और ये काम फादर आंथन ने और मिस्टर फरियाद ने मेरे साथ मिलकर बाखूबी निभाया। ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियों की हमें ज़रूरत थी जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकें और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मेज़बानी कर सकें और अच्छा जो है वो बोल चाल रखने और अच्छी आवाज़ के मालिक होते। इसके साथ साथ हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत थी जो एडिटिंग का काम जानते हों, और बहुत से लोगों के साथ हमने मीटिंग्स की, बातचीत की, कई बड़े शौक से आए, हमारी टीम मीटिंग्स में शरीक होते रहे, मगर बादजा वो कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं पाई जाती। डेडिकेशन और कमिटमेंट बाज़ औकात हमें जोश तो आ जाता है, लेकिन जब मसलसल हमें काम करना पड़ते हैं तो बहुत से लोग जो है वो रास्ता ही छोड़ते चले जाते हैं। मगर मुझे खुशी है कि बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां हमारे साथ इस कमिटमेंट में, इस नेक काम में मसलसल हमारे साथ रहे और आज भी हमारी
टीम का हिस्सा हैं। ये काम बहुत सारी मसरूफियत से निकालना, इसको इकट्ठे करना, यकजा करना लोगों को और ख्यालात को, यकीनन ये एक लंबा सफ़र था मेरे लिए भी, लेकिन बहुत से अच्छी सोच रखने वाले काहिनों ने, सिस्टर साहबात ने और आम मोमिनीन ने हमारा हाथ बिठाया है और आज भी वो हमारी मदद कर रहे हैं। इसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम तैयार करने होते हैं और ये जिम्मेदारी एक बंदा या दो बंदे नहीं निभा सकते, तो हमने इस फरीज़े को सर अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ जो हमारी डायसिस में डिपार्टमेंट्स हैं या वो काहिन जो खूबी रखते हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हमने जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं और कुछ जिम्मेदारियों के लिए अभी भी हम मुतलाशी हैं, ढूंढ रहे हैं लोगों को जो हमारे साथ इस नए काम को निभाएं। तो आपने देखा कि एक प्रोग्राम है हमारा फख्र, जिसमें हम डायसिस के उन नौजवानों, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने अपने एक्स्ट्रा टैलेंट के जरिए से अपने शहर में या हमारी डायसिस में हुकूमती सतह पर या शहर की सतह पर आला कारकर्दगी सर अंजाम दी। आपने पहला देखा हमारे फख्र में इंटरव्यू है बाबर मसीह का, जो स्नूकर के आलमी चैंपियन, एशियन चैंपियन और पाकिस्तानी चैंपियन है। इसके अलावा हमारे फख्र में हमने पेश किया है हमारी एक इसी पैरिश की, कैथीड्रल पैरिश की, मुझे भी नहीं था इसका इतना पता, लेकिन देखिए हमारे इस पैरिश की एक कैथलिक टीवी आर्टिस्ट है जो अभी दौरे हाजरा में काफी पॉपुलर है और बहुत से प्रोग्रामों में और ड्रामास में उसे कास्ट किया जा रहा है। रुबैका अब्दुल, अगर आप YouTube पे उसका नाम लिखेंगे तो आप उसके सारे ड्रामे प्रोग्राम्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। तो हमारा फख्र के लिए मैंने जिम्मेदारी जो है अपनी कोरिया से मिस्टर फरियाद को दी, तो ये हमारा फख्र प्रोग्राम जो है वो इनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक प्रोग्राम की जिम्मेदारी फादर आंथन के पास है और वो है बुलाहट और खिदमत, क्योंकि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि लोग हमारी बुलाहट की कहानी को जाने। हम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमने इस ज़िंदगी का क्यों इंतखाब किया है। तो बहुत से काहिनों की, बल्कि सब काहिनों की जो है बुलाहट की कहानियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम जो हैं इस पे नशर करेंगे। चंद एक सिस्टर्स की भी बुलाहट की कहानियाँ हम लेंगे, मुनाज साहबान की और आम मोमिनीन की भी बुलाहट की कहानियाँ जो है वो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से नशर करेंगे। तीसरा प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी रेवरेंड फादर नासर विलियम को हमने सौंपी है और वो भी हमारे साथ इस आवे मरिया की टीम में बराबर के शरीक हैं। और फादर नासर विलियम जो हैं डॉक्यूमेंट्रीज पर जो है वो काम कर रहे हैं और इसका सिलसिला जारी रखेंगे। मुकद्दस तोमा की डॉक्यूमेंट्री जो है ऑलरेडी आवे मरिया यूट्यूब चैनल पर है। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्रीज जो क्रॉस जो डिस्कवर हुई है उसकी डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई है, वो भी है। और वक्त के साथ और डॉक्यूमेंट्रीज जो है डायसिस के बारे में, पाकिस्तानी चर्च के बारे में, तो वो इस शोबे की जिम्मेदारी फादर नासर विलियम को दी हुई है। और तीसरा प्रोग्राम जो ईमान की गूंज, उसकी जिम्मेदारी जो है वो हमारा कैटिकल डिपार्टमेंट जो है उनको जो है सौंपी है। तो एक प्रोग्राम, क्योंकि एक बंदे के लिए सारे प्रोग्राम करना मुश्किल है, तो
ये मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ लोग जो हैं इस ज़िम्मेदारियों को निभाएंगे। और एक ज़िम्मेदारी मैं कारितास पाकिस्तान को भी दे रहा हूँ, वो समाजी कामों की और हेल्थ के प्रोग्राम की जो है वो ज़िम्मेदारी को निभाएंगे। इसके अलावा जो है वो डायसिस की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी जो है वो नशर करेंगे। आपने देखा कि रिपोर्टिंग पॉइंट के नाम से जो डायसिस की एक्टिविटीज़ की जो है रिपोर्ट वो भी इस चैनल पर जो है वो नशर की जाती है। तो इन जिम्मेदारियों को बांटा गया है। अगर कोई रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन कोई किसी काम की जिम्मेदारी लेना चाहती है प्रोग्राम तैयार करने में, तो हम उन्हें भी ये जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि और बहुत सारे ख्यालात हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने के लिए, क्योंकि अकेला हम 2-3 बंदे नहीं कर सकते। लेकिन सारी डायसिस, क्योंकि ये डायसिस का चैनल है, तो सारी डायसिस जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। और वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो बोलने की सलाहियत रखते हैं और जो इस चैनल में काम करना चाहते हैं वॉलंटियर बेसिस पे, वो हमें बताएं, क्योंकि हम उन्हें ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, उनकी आवाज़ को बेहतर करने में मदद देंगे, उनके उर्दू के अंदाज को भी हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम ट्रेनिंग के ज़रिए से भी जो है हमारी टीम का जो हिस्सा बनेंगे उनकी मदद करेंगे। तो मैं आज एक दफ़ा फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि बुनियादी मकसद जो इस YouTube चैनल का है वो खुदा के कलाम का प्रचार है। खुदा बाइबल मुकद्दस की तालीमात, कलीसियाई तालीमात का प्रचार, ये मकसद है। क्योंकि हम सब भी बतौर मसीही इस काम के लिए बुलाए गए हैं, खुदा के कलाम के प्रचार करने के लिए। और हम जो फादर सिस्टर्स हैं वो ख़ास तौर पर हम इस काम के लिए बुलाए गए हैं। और मीडिया के दौर में आवे मरिया कैथलिक टीवी यही खिदमत सर अंजाम देगा। चर्च बहुत जोर देता है कैनन लॉ में, बकायदा कुछ कैनन्स ऐसे हैं जो मीडिया की बात करते हैं और हमें बताते हैं कि चर्च को मीडिया का खुदा के कलाम को फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मैं ख़ास तौर पर रेवरेंड फादर आंथन, मिस्टर फरियाद, हमारे मुनाद साहबान, मिस्टर खुर्रम जो फरियाद के साथ काम करते हैं, मिस साइका, फादर नासिर विलियम और दीगर तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो इस टीम का हिस्सा हैं और दिन रात अपनी पासबानी खिदमत से वक्त निकाल कर वॉलंटियर तौर पर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने ये नौजवानों का बैंड देखा है, मैं इनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि एड्रियन और चंद एक नौजवानों को मैंने पकड़ा। मैंने कहा जी मुझे नौजवान चाहिए जो एक ग्रुप बनाए और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम जो है वो साथ चलेंगे और गीतों के ज़रिए से खुदा के कामों को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने इनको कहा और ये खुद ब खुद इकट्ठे हो गए। अभी मुझे टाइम नहीं मिला इनके साथ बैठने का, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो ये और निखर कर जो है वो सामने आएंगे और हम गीतों के ज़रिए से भी खुदा के प्रचार का, मुनादी का काम जो है वो जारी रखेंगे। आप सबको मैं एक दफ़ा फिर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पर आज मैं फजीलत मुआब कार्डिनल जोसेफ कूट्स, आर्च बिशप ऑफ कराची का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी आमद अचानक है, क्योंकि मुझे भी नहीं था पता, क्योंकि वो एक प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन बाद अज़ा खुदा ने ऐसा हमें मौका बख्शा कि वो आज हमारे साथ इस इफ्तिताई तकरीब और मेरी कहानत की सालगिरह और उसकी सालगिरह में भी शरीक है।
मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। मेरी दुआ है कि हम सब खिदमत में आगे बढ़ें, चाहे हम फादर सिस्टर्स रिलीजियस हैं, चाहे आम मोमिनीन हैं। हम बतौर मसीही मसीह के पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए बुलाए गए हैं और शायद खुदा ने इसीलिए हमें मसीही होने के लिए चुन लिया है। खुदा आप सबको बरकत दे, हमारी डायसिस को बरकत दे और पाकिस्तानी कलीसिया को बरकत दे।